Good morning, friends. We are going to start new lecture of engineering mechanics. In our earlier session, we have learnt about relationship between mechanical advantage, velocity ratio and efficiency, and also discuss numericals based on these terms. In our present session, let us learn about the friction in a machine and what is ideal machine, what is ideal effort, what is ideal load and frictional effort क्या होता है, frictional load क्या होता है, and relationship between actual ideal and frictional effort and load. Friends, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट्स मिल सके. Now, what is friction in a machine? In previous class, we have assumed every machine to be frictionless, but this is a rare phenomenon as every machine cannot be frictionless. It has been observed that there is always some amount of friction present in every machine because it has been observed that there are always some losses in every machine and these losses are mainly due to friction. So the machine friction या कह सकते हैं कि the machine loss or machine friction may be expressed either on the effort side or on the load side. So अगर हम केस 1 में लेते हैं कि when expressed on the effort side, then क्या होगा? When expressed on the effort side, then घर्षण को घर्षण बल पर काबू पाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रयास किया जाता है. That means friction may be defined as an additional effort required to overcome the frictional force. And case 2, when expressed on the load side, friction may be defined as the additional load that can be lifted. That means घर्षण को अतिरिक्त भार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे उठाया जा सके. Now, if we record the various values of efforts required to raise the corresponding loads or weights, अगर हम डिफरेंट वैल्यूज का अगर हम रिकॉर्ड रखते हैं, दैट मीन्स वेट के बढ़ने के कारण जो एफर्ट रिक्वायर्ड होगा उसका अगर हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं एंड प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एफर्ट एंड लोड, वी शैल ऑब्टेन द स्ट्रेट लाइन. दैट मीन्स यहाँ पे अगर लोड इंक्रीज करेगा तो उसको अप्लाई करने में जो एफर्ट होगा वो भी इंक्रीज करेगा. सो from the graph we see that the intercept OA represents the amount of friction present in the machine. That means the machine friction may be represented either on the effort side or on the load side. इसको हम लोग दोनों साइड से एक्सप्रेस कर सकते हैं, either on the load side or either on the effort side. Now let W equal to actual load lifted by an effort and Wi equal to ideal load lifted by the same effort. Ideal load मैंने बताया था in case of ideal machine when neglecting machine friction, and actual load means considering machine friction. जब मशीन में फ्रिक्शन हो तो उसका लोड क्या कहलाएगा? एक्चुअल लोड कहलाएगा. एंड जब मशीन में फ्रिक्शन नहीं हो, मीन्स फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ऐसा लोड क्या कहलाएगा? आइडियल लोड कहलाएगा. सिमिलरली actual effort required to lift a load, let P, actual effort कब होगा? जब हम मशीन में फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे. एंड Pi equal to ideal effort required to lift the same load. That means ideal effort means neglecting machine friction. Also, let us consider LP is equal to loss of effort due to friction and LW equal to loss of load due to friction, जो कि हमको फाइंड आउट करना है. सो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले क्लास में देखा था कि आइडियल मशीन क्या होता है. सो आइडियल मशीन अगर हम समझ जाएंगे
तो यहाँ से हम लोग आइडियल लोड एंड आइडियल एफर्ट क्या होता है वो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अ मशीन हुज फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबली, that is very small or zero is called ideal machine. that means क्या होगा, इसका जो इफिशियंसी हो जाएगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा. that means कह सकते हैं कि इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो. और आइडियल के केस में इफिशियंसी कितना होता है 100%, यानी इफिशियंसी का वैल्यू कितना होगा 1 होगा. सो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है W बटा P एंड वेलोसिटी रेशियो क्या होता है Y बाई X. सो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे क्या होगा मेरा W बाई P इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, दैट मीन्स Y बटा X. दैट इज यहां से एक चीज और कह सकते हैं कि आउटपुट ऑफ ए मशीन इक्वल टू इनपुट ऑफ ए मशीन. एंड आउटपुट ऑफ ए मशीन क्या होता है मेरा लोड लिफ्टेड कितना है W एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड यानी X. इनपुट ऑफ ए मशीन क्या होगा एफर्ट कितना है P इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट यानी Y. सो यहां से भी हम निकाल सकते हैं और यहां से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इस तरह से कह सकते हैं कि मेरा P आइडियल जो होगा वो क्या होगा W बटा VR. P आइडियल मीन्स आइडियल एफर्ट, मेरा आइडियल एफर्ट जो होगा वो क्या होगा W बटा VR. एंड कह सकते हैं कि W आइडियल मेरा क्या होगा यहाँ पे P इंटू VR. सो यहां से दो चीज हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, P आइडियल क्या होगा एंड W आइडियल क्या होगा. P आइडियल क्या हो गया मेरा आइडियल एफर्ट एंड W आइडियल क्या हो गया आइडियल लोड. नाउ वी कैन से दैट P इज ग्रेटर देन PI. इस केस में क्या होगा P इज ग्रेटर देन PI. P कब होगा जब मेरा फ्रिक्शन इस मशीन में कंसीडर करेंगे एंड PI मीन्स P आइडियल कब होगा जब फ्रिक्शन यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, मीन्स फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे. तो फ्रिक्शन जब कंसीडर करेंगे तो उस केस में P का वैल्यू ज्यादा होगा इन केस ऑफ P आइडियल से, बिकॉज द एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड और द एफर्ट वेस्टेड इन मशीन व्हाइल लिफ्टिंग अ गिवन लोड. क्योंकि जब फ्रिक्शन जब मेरा मशीन में आ जाएगा तो उसके चलते हम मेरा जो है क्या होगा लोड डिक्रीज करेगा, लेकिन मेरा जो एफर्ट अप्लाइड है वो इंक्रीज होगा, मीन्स एक्स्ट्रा एफर्ट हमको अप्लाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स P ग्रेटर देन PI होगा. एंड ऑल्सो WI ग्रेटर देन W होगा. दैट मीन्स आइडियल वेट जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एक्चुअल वेट से, because due to friction machine loses some weight. Now so loss of effort due to friction क्या होगा loss of effort को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया था LP से. so LP इक्वल टू क्या होगा ऑब्वियसली P ग्रेटर देन PI है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P माइनस PI. लॉस ऑफ एफर्ट मेरा कितना हो गया P माइनस PI. इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे. दैट इज अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द मशीन फ्रिक्शन. एंड लॉस ऑफ लोड क्या होगा लॉस ऑफ वेट क्या होगा ड्यू टू फ्रिक्शन WI माइनस W, बिकॉज WI ग्रेटर देन क्या है W के है. सो LW इक्वल टू क्या हो गया मेरा WI माइनस W. दैट इज ये क्या हो गया मेरा लॉस ऑफ लोड हो गया, लॉस ऑफ लोड. इसको इक्वेशन 2 मानेंगे. सो लोड इक्विवेलेंट टू द मशीन फ्रिक्शन मेरा यहाँ पे निकल गया एंड अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द मशीन फ्रिक्शन यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर लिया. मीन्स लॉस ऑफ एफर्ट एंड लॉस ऑफ वेट, या कह सकते हैं कि लॉस ऑफ लोड मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया. नाउ
So in the case of an ideal machine, to lift a weight W, the effort required is Pi only, because a small load के लिए less effort लगाना पड़ता है, and to lift a load Wi, effort required is P, because large load के लिए large effort लगाना पड़ेगा. But in the case of an actual machine, to lift a load W, effort required is P. यहाँ पे ही कंडीशन होगा, to lift a load W, effort required is P. And we know that P ideal equal to W divided VR. मैंने इस केस में बताया था कि P ideal equal to W divided VR. इसको इक्वेशन 3 कंसिडर कर लेते हैं. And LP equal to P minus PI. LP equal to P minus PI. मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है फ्रॉम इक्वेशन 1 से. फ्रॉम इक्वेशन 1 से. सो दैट LP इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, P माइनस W डिवाइडेड VR. सो इक्वेशन ये इसको 4 मान लेंगे. मीन्स हम फाइंड आउट कर लिए कि लॉस ऑफ एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा. नाउ WI हमको मालूम है क्या होता है, P इंटू VR. जैसा कि मैंने आइडियल मशीन के केस में फाइंड आउट किया, क्या होता है P इंटू VR. W आइडियल क्या होता है P इंटू VR. सो दैट्स वाई यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि LW मीन्स लॉस ऑफ लोड ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, WI माइनस W. मैंने यहाँ पे निकाला है क्या होगा, WI माइनस W मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 2 से. फ्रॉम इक्वेशन 2 से. सो यहां से LW हमको फाइंड आउट हो गया P इंटू VR माइनस W. दैट मीन्स यहां से LW फाइंड आउट हो गया, मीन्स लॉस ऑफ लोड ड्यू टू फ्रिक्शन फाइंड आउट हो गया. नाउ इसको WI को इक्वेशन हम लोग यहाँ पे 5 मानते हैं और इसको यहाँ पे 6 मानते हैं. सो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 6 बाय VR. अगर इसको दोनों साइड VR से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, P माइनस W डिवाइडेड VR. यहां से ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा. नाउ सो इस तरह से मैंने यहाँ पे LP का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया एंड LW का वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो गया. LW का वैल्यू यहां से क्या फाइंड आउट हो गया, LW इक्वल टू P माइनस W बटा VR क्या हो जाएगा, LP. फ्रॉम इक्वेशन 4 से क्या हो जाएगा यहाँ से, LP मीन्स LP बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन यहाँ 4 से, इसलिए LW इक्वल टू हो जाएगा VR इंटू LP. VR इंटू LP. सो इस तरह से मैंने यहाँ पे LW लॉस ऑफ लोड ड्यू टू फ्रिक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. इसको इक्वेशन 7 मान लेते हैं. नाउ फॉर एक्चुअल मशीन इन विच फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, ये तो था आइडियल मशीन के लिए. फॉर एक्चुअल मशीन के लिए क्या होगा, फॉर एक्चुअल मशीन के लिए क्या होगा, एक्चुअल मशीन में के केस में क्या होगा, P एक्चुअल इक्वल टू क्या हो जाएगा, W डिवाइडेड इफिशियंसी इंटू 1 बटा VR. ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, W बटा P मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड वेलोसिटी रेशियो Y बटा X. सो लिख सकते हैं हम लोग W बाई P इंटू VR. सो यहां से अगर P निकालेंगे तो W डिवाइडेड इफिशियंसी इंटू VR. सो इस तरह से कह सकते हैं हम लोग कि P एक्चुअल क्या होगा, W डिवाइडेड इफिशियंसी इंटू 1 बटा VR. यहां से मैंने P एक्चुअल का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. इसको इक्वेशन 8 कंसिडर करेंगे. नाउ सिमिलरली W एक्चुअल क्या हो जाएगा, W एक्चुअल यहां से फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू इफिशियंसी इंटू VR मीन्स P इंटू इफिशियंसी इंटू VR. यहां से W एक्चुअल मैंने फाइंड आउट कर लिया. W एक्चुअल मीन्स जब मशीन में फ्रिक्शन जब हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे उस केस में, जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आइडियल केस हो जाएगा. सो यहां से P फ्रिक्शन हम लोग निकाल सकते हैं. प्री फ्रिक्शन
दैट मीन्स एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड और द एफर्ट वेस्टेड इन द मशीन, मीन्स एक्स्ट्रा एफर्ट जो लगा फ्रिक्शन के चलते वो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा P एक्चुअल माइनस P आइडियल, मीन्स एक्चुअल में से आइडियल को माइनस कर देंगे तो मेरा जो P फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन चलते एक्स्ट्रा एफर्ट लगा वो निकल जाएगा। तो P एक्चुअल मेरा फ्रॉम इक्वेशन 3 से था W डिवाइडेड, फ्रॉम इक्वेशन 8 से W डिवाइडेड इफिशियंसी इंटू VR, एंड P आइडियल मेरा है W डिवाइडेड VR। सो यहां से मेरा P फ्रिक्शन, दैट मीन्स यहां से अगर कॉमन ले लेंगे W बटा VR को तो ये हो जाएगा 1 बटा इफिशियंसी माइनस 1, मीन्स P फ्रिक्शन का मेरे पास ये फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ। इसको इक्वेशन 10 कंसीडर करेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग W फ्रिक्शन निकालना चाहें, मीन्स फ्रिक्शन के कारण जो वेट में जो लॉस हुआ, वेट का जो लॉस हुआ वो क्या हुआ, W आइडियल माइनस W एक्चुअल, क्योंकि मेरा जो लोड था वो जब फ्रिक्शन नहीं था उस समय लोड ज्यादा था, मीन्स W आइडियल क्या था मेरा ज्यादा था W एक्चुअल से, सो W आइडियल माइनस W एक्चुअल मीन्स P इंटू VR माइनस इफिशियंसी इंटू P इंटू VR। W आइडियल मेरे पास है P इंटू VR एंड W एक्चुअल मैंने निकाला P इंटू इफिशियंसी इंटू VR, सो यहाँ पे वैल्यू पुट किया। सो अगर इसमें हम लोग कॉमन ले ले P इंटू VR कॉमन ले ले तो 1 माइनस इफिशियंसी मीन्स 1 माइनस इफिशियंसी, यानी W फ्रिक्शन जो मेरा आया P इंटू VR 1 माइनस इफिशियंसी, यहां से मैंने ऑब्टेन किया। इसको इक्वेशन 11 मान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे आज के क्लास में एक्चुअल एफर्ट, आइडियल एफर्ट एंड फ्रिक्शनल एफर्ट के बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। सिमिलरली एक्चुअल लोड, आइडियल लोड एंड फ्रिक्शनल लोड के बीच में भी रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। सो वीडियो के पसंद आने पे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।